So we have finished the journey of cell, right? And genes. Now we start today journey through material body. Now we enter the mind and the cell. So we have finished the material body, cell, genes. Now we are entering into mind. So mind and the miasm. हमने अभी तक देखा कि बॉडी किस तरह से अकॉर्डिंग टू मायाजम डेवलप होती है, अकॉर्डिंग टू मायाजम कैसे स्ट्रक्चर्स फॉर्म होते हैं, सोरिक फेज, साइकोटिक फेज, सिफिलिटिक फेज. नाउ वी लर्न द सोरिक माइंड, psychotic mind and syphilitic mind. So chapter number 15, page number 108, entering the mind of the same. In aphorism 63 of Organon, Hahnemann mentions that every agent and every medicine dearranges the vital force and causes alteration in health for longer or shorter period. Vital force endeavors to oppose it. Yes, this resistant action is a property or automatic action of our life-preserving power. It means that our vital force or the force which pervades our cells and tissues and the whole being, it is own intelligent way is trying to save our life. And this intelligent force is continually in action. कभी ये सोता नहीं है, कभी ये रेस्ट नहीं करता, कंटिन्यूअस. आप देखो, आपको रात में 3 बजे जाग भी आता है और एक आधी स्नीजिंग सिंक भी आती है, छींक भी आती है. तो इसका मतलब यह है कि वाइटल फोर्स और दिस फोर्स इज इन एक्शन, कि उस टाइम पे कुछ टपी इरिटेटिंग फैक्टर और कुछ फॉरेन पार्टिकल्स आपके नोज में गए और आपको डिफेंस दिया इन द फॉर्म ऑफ रिफ्लेक्स. तो इस तरह से दिस फोर्स इज इन एक्शन फॉर trying to save our life. We saw in aphorism 74 how the force which runs the organism makes it revolt in different ways, one better and stronger than other in order to maintain life. In aphorism 201, Hahnemann writes, it is evident that man's vital force, when encumbered with chronic disease, adopts a plan. The plan is of developing a local malady on external part. Yes. So this is the plan. कि less से less dangerous form body में होने को ना और less important organ पे इसने develop होने को ना. मतलब they are trying to save our more important organs and save us from more dangerous diseases. Yes. So it is evident that man's vital force, when encumbered with chronic disease, adopt a plan. The plan is of developing a local malady on external part. That is the least important part, the least important organ, solely for this object, to thereby silence the internal disease, which otherwise threaten to destroy the vital organs. Yes.
So all the above facts suggest that the vital force or the force which pervades the cells has its own intelligence. Surprisingly, many homeopaths call vital force unintelligent. Yes. तो देखो कितना इंटेलिजेंटली ये अपना रोल प्ले करता है कि बॉडी के अंदर के जो मेन ऑर्गन्स होते हैं, जो वाइटल ऑर्गन्स होते हैं, मोर इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स होते हैं, उन ऑर्गन्स को प्रॉब्लम ना हो, उन ऑर्गन्स को सफर ना होते देने का, और उसके बदले में लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन्स पे सबसे पहले उस ऑर्गेनिज्म का अटैक हो या फिर इंजूरियस एजेंट का अटैक हो, तो सबसे पहले यहाँ प्लान एडॉप्ट किया जाता है कि जो लेस इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, जो लेस इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो पहले डैमेज हो। उसके बाद इंटरनल पार्ट, जैसे जैसे वो ऑर्गन वो पार्ट और ऑर्गन डैमेज होते जाता है, मतलब वो जो मॉर्बिड फोर्स है, जो डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, वो पावरफुल बनते जाता है, और धीरे धीरे वो इंटरनल ऑर्गन्स को भी डैमेज करते जाता है। तो बॉडी एंड दिस vital force always trying to save and to keep the shape of our more important organs and the vital organs. Yes. So, तो ये वही स्ट्रेटेजी है जैसे कि जनरली नेचुरली सभी लोग यूज करते हैं। मतलब जब हम देखते आए हैं फिल्मों में, सीरियल्स में, कि या फिर किताबों में पढ़ते आए हैं, अभी तक बहुत से स्टोरीज हमने वार के पढ़े हैं कि जब भी वार होता है तो सबसे जो लेस इम्पोर्टेंट फोर्स होता है, सैनिक होते हैं, सोल्जर्स होते हैं, जिन्हें ज्यादा कुछ विपन्स चलाते नहीं आते, वो सबसे आगे होते हैं। उसके बाद जो मोर इम्पोर्टेंट ज्यादा मतलब तैयार होते हैं, वो उसके बाद आते हैं। फिर उसके बाद जैसे हाँ घोड़े आएंगे, उसके बाद हाथी वाले सोल्जर्स आएंगे। इस तरह से हमने युद्ध पढ़े हैं, देखा है फिल्मों में भी और सीरियल में भी। ये क्यों? क्योंकि जो उसका उनका सरदार होता है वो इसी तरह की स्ट्रेटेजी अपनाता है कि सबसे मतलब जो लेस इंपॉर्टेंस वाले होते हैं वो सबसे आगे, उसके बाद फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले, फिर उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस वाले, उससे पावरफुल, लाइक दिस। तो इसी तरह से युद्ध में वो स्ट्रेटेजी अपनाई जाती है। वहां पे भी माइंड का यूज होता है, अपने आइडियाज का यूज होता है। अगर वो अपने माइंड का यूज कर रहे हैं तो उसी तरह से बॉडी भी, ऐसा समझे कि अपनी बॉडी भी एक युद्ध का क्षेत्र है, और वहां पे माइंड जो हर सेल में है वो अपना माइंड यूज करता है, और बराबर वही स्ट्रेटेजी के हिसाब से वहां पे वो, जैसे कि जो ऑर्गेनिजम्स हैं, वाइटल फोर्स, इनके बीच का युद्ध शुरू होता है, वार शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले वो ऑर्गन्स अफेक्ट होंगे जो लेस इंपॉर्टेंस है, उसके बाद फिर वो धीरे धीरे मोर इम्पोर्टेंट की तरफ बढ़ते जाता है। यस। सो इसीलिए सर ने कहा है कि ईच एंड एवरी सेल हैज अ माइंड। अगर ये माइंड नहीं होता तो इस तरह से ये जो क्यूरिंग प्रोसेस है एंड जो भी डिजीज की प्रोसेस है वो हमारे बॉडी में फॉलो ही नहीं होती थी। यस। सो ऑल द अबव फैक्ट्स सजेस्ट दैट द वाइटल फोर्स और द force which pervades the cells has its own strategy or intelligence. Yes. इसका मतलब हमारे हर सेल्स में वाइटल फोर्स होता है, और हर वो जो वाइटल फोर्स है उसे माइंड है, इंटेलिजेंस है। और बहुत से किताबों में लिखा है कि वाइटल फोर्स इज अनइंटेलिजेंट, बट इट इज रॉन्ग। वाइटल फोर्स इज एन इंटेलिजेंट। यस। So it loses the intelligence in the syphilitic miasm when it loses control and start sacrificing important organ. Yes. तो वाइटल फोर्स हैज इंटेलिजेंस, उसे इंटेलिजेंस है, लेकिन
वो इंटेलिजेंस लूज होता है इन द वेन, जब करो या मरो की स्थिति आती है, दैट मीन्स द सिपिलिटिक डिस्ट्रक्टिव माइजम. सो व्हेन वाइटल फोर्स बिकम डिस्ट्रक्ट, then it is become inintelligent, so unintelligent. So it is only because of its intelligence that the cells and the tissues recognize what is harmful to it. Yes, what belongs to internal environment and what does not, what primary steps to be taken like physiologic defense response, when to change the physiologic defense to morphological defense, what to accumulate, what to produce in excess or what to produce less, or which organ or tissue to destroy. Yes, yes. तो ये वही है, अगर ये इंटेलिजेंस नहीं होता तो इस तरह से पैथोलॉजी नहीं होती थी, इस तरह से फिजियोलॉजी नहीं होती थी, है ना. बॉडी की फिजियोलॉजी कितनी सिस्टमेटिकली अरेंज की है, कितना फंक्शन ऑटोमेटिक होता है ना. पट से फंक्शन स्टार्ट हो जाता है, अगर कहीं इंजरी भी होती है तो पट से बॉडी उसके क्योर करने के पीछे पड़ जाती है. तो ये क्यों होता है? बिकॉज ऑफ इंटेलिजेंस. वहां पे तो कोई ऐसी ऑर्डर नहीं निकलती है कि भाई यहाँ कट हुआ है तो जाओ एंटीबैक्टीरियल वहां पे लाइसोजाइम सिक्रेट करो ताकि कोई बैक्टीरिया फॉरेन पार्टिकल्स वहां पे गया तो डिस्ट्रॉय हो जाए. नहीं, ऐसा नहीं है. इन्हें कोई ऑर्डर नहीं देता है ना, लेकिन ये दे प्ले देयर रोल्स इंटेलिजेंटली, automatically. Yes, that's why vital force has an intelligence. So it is only because of its intelligence that the cells and the tissues recognize what is harmful to it, what belongs to internal environment, no, what does not. Yes, what primary steps to be taken like physiologic defense. जैसे आंख में कुछ जाता है तो वहां से टीयर्स बाहर निकलते हैं, जैसे नाक में नोज में कुछ जाता है तो स्नीजिंग होती है, थ्रोट में कुछ जाता है तो कफ होता है. दिस इज ऑल इज इंटेलिजेंस. इंटेलिजेंटली ये फंक्शन प्ले होता है. सो व्हेन टू चेंज द फिजियोलॉजी, और जैसे जैसे हम देखते हैं कि अभी हमने जो बॉडी लेवल पे देखा था, 3 स्टेजेस आते हैं. फर्स्ट इन्फ्लामेशन, देन accumulation, induration and afterward the destruction. तो ये ऑटोमेटिक होता है, ये ऑटोमेटिक होता है. कहीं कुछ इसके लिए कोई प्रोसेस नहीं होती कि अब ये खत्म हो गया फिर ये शुरू करना पड़ेगा, फिर ये खत्म हो गया तो तीसरा शुरू करना पड़ेगा. नहीं, है ना. तो ऑटोमेटिकली एक स्टेप खत्म हो गई, इन्फ्लामेशन से वो पार्ट कवर नहीं हो रहा है तो पट से वहां पे एक्यूमुलेशन स्टार्ट हो जाएगा. एक्यूमुलेशन से भी जब वो पार्ट कवर नहीं होता है, प्रोटेक्ट नहीं होता है, तो वहां पे डिस्ट्रक्शन होना शुरू हो जाता है. बॉडी ऑटोमेटिकली उस पार्ट को बॉडी से अलग कर देते हैं ताकि बॉडी का होल पार्ट सेफ हो जाए और सेव हो जाए. यस, सो दिस all things play automatically intelligently. Yes, so what to produce in excess, what to produce less, or which organ or tissue to destroy. It is because of intelligence it knows what is the least important organ, and above all it is this very intelligence which induces the body to produce pain, sensitivity, growth or ulcer. Yes, so these are the stages. और ये सब ऑटोमेटिक होता है एंड ये सब प्ले करता है हमारा वाइटल फोर्स. इसका सब कमांड होता है वाइटल फोर्स के पास, सो दैट इट कैन ड्रॉ अटेंशन ऑफ आउटवर्ड्स एंड टू मेक इट नोन दैट ऑल इज नॉट वेल विद इन. और ये जब समझ में आता है किसी पार्ट में अगर इरिटेशन हो गया, उसकी सेंसिटिविटी बढ़ गई, या फिर वो पार्ट सेंसिटिव हो गया, या फिर सेंसेशंस उस पार्ट के कम हो गए, तो समझ लेना कि अंदर सब कुछ ठीक नहीं है, कुछ तभी गड़बड़ हो रही है. So doctors and physicians who try to treat these external SOS signals of the body like pains, ulcers and eczemas, in fact, expose their substandard intelligence. These are the people who with their unintelligent faculties do not understand the intelligence in the organism. So as if this is not sufficient, the cell, which is a representative unit of whole man,
has been seen to behave and react to different situations, taking into consideration the genetic inheritance. The genetic apparatus which is at the root of the intelligence of the organism does not only have inherited knowledge and tendency, but it is also in a ever learning process which impart acquired traits to array of inherited traits. Thus the cell or organism hides physically only with guidance from the mind of the cell. Yes, तो बहुत अच्छा सर ने यहाँ लिखा है कि ये जो भी होता है हर सेल के इंटेलिजेंस से होता है, हर सेल को माइंड दिया है, हर सेल को इंटेलिजेंस दिया है, हर सेल के इंटेलिजेंस से ये प्रोसेस होगी, ये प्रोसेस परफॉर्म होगी। यस, तो कुछ एक्वायर्ड होता है, कुछ इनहेरिटेड होता है। यस, सो तो ये acquired and inherited, it is the part of genes that which proteins are synthesized in that genes, तो ये totally उस पे डिपेंड होता है। So mind of the cell, mind of the cell is in its genes. Yes, mind of the cell is in its genes. The genes decide whether this individual is going to be coward or courageous, audacious or timid or angry or anxious or haughty or survive. Yes, तो जैसे हमने फिजिकल बॉडी में देखा था कि जिस टाइप के प्रोटीन्स वहां सिंथेसाइज हुए, मतलब जीन्स में जो प्रोटीन सिंथेसाइज होके आए हैं, तो वो किस टाइप का बॉडी स्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, आईज कैसे होंगे, नोज कैसा होगा, हैंड्स कैसे होंगे, शॉर्ट होंगे, लॉन्ग होंगे, आईज कलर कैसा होगा, नोज ब्रॉड होगा, थीन होगा, शार्प होगा, ये सब फीचर्स उस जीन्स में एनकोडेड होते हैं। उसी टाइप से अब हम माइंड देख रहे हैं, सेल का माइंड देख रहे हैं, तो माइंड के भी कैरेक्टर्स उस जीन्स में सब उस प्रोटीन्स में प्रोटीन्स जो सिंथेसाइज होके आए, तो वो प्रोटीन्स में ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे कि वो प्रोटीन्स डिसाइड करेंगे, वो जीन्स डिसाइड करेंगे कि इस पर्सन का माइंड किस तरह से डेवलप होगा, ये पर्सन कवार्ड होगा, एंग्री होगा, टिमिड होगा, करेजियस होगा, बोल्ड होगा, पॉजिटिव होगा, नेगेटिव होगा, कैसा होगा, ये सब इंफॉर्मेशन उस जीन्स में एनकोडेड होती है। यस, सो these and other genetic traits further expresses themselves through emotions of fears, anxieties, loves, attachment, hates, etc. Yes, so these also these are the genetic dispositions or the reactions also comes from that genes. Yes, so as we know and have already seen that the word of life depends on defense, that is Darwin's law of survival of the fittest. Defense can be physical or mental. We saw the cell defending in face of physical attack. Yes, तो बहुत अच्छा सर ने कहा है कि डिफेंस कैन बी फिजिकल और मेंटल। यस, तो आप देखो ये कुछ लोग फिजिकली डिफेंस करते हैं, कुछ लोग मेंटली डिफेंस करते हैं। जो इंटेलिजेंट पीपल्स होते हैं वो नेवर फाइट फिजिकली, दे फाइट मेंटली, गोइंग इनटू कोर्ट, राइट? यस, डिफेंस ऑफिसेस, दे फाइट लाइक दिस। बट जो फिजिकली डिफेंस करते हैं वो अपना माइंड यूज नहीं करते, वो फिजिकली लड़ने के लिए, मारने के लिए तैयार हो जाते हैं। यस, तो इसीलिए फिजिकल डिफेंस कैन बी फिजिकल और मेंटल। वी सॉ द सेल डिफेंडिंग इन फेस ऑफ फिजिकल अटैक। नाउ वी विल सी हाउ द सेल डिफेंड द अटैक मेंटली। तो मेंटली जैसे कि हमने फिजिकली देखा था कि बॉडी किस तरह से डिफेंस करती है, तो बॉडी तीन टाइप्स के स्ट्रेटेजी अपनाती है, एक इन्फ्लामेशन, देन एक्यूमुलेशन एंड थर्ड डिस्ट्रक्शन। उसी तरह से माइंड लेवल पे, मेंटल लेवल पे बॉडी माइंड किस तरह से कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाता है, किस तरह से डिफेंस करता है, तो ये हम देखेंगे। सो लाइफ हैज ऑलवेज बीन
busily improving upon the previous generation in qualities and attributes. Yes, this is perhaps what Hahnemann has mentioned as striving for higher purpose of existence. In aphorism 9 of Organon, Hahnemann says, in the healthy condition of man, the spiritual vital force, the dynamism that animates the material body, rules with unbounded sway and retains all the parts of the organism in admirable, harmonious, vital operations as regard both sensation and function, so that our indwelling vision gifted mind can freely employ this living healthy instrument for the higher purpose of our existence. तो हर इंसान को माइंड इसीलिए दिया है, बॉडी इतनी स्ट्रांग इसीलिए दिया है कि हमने जिस काम के लिए, जिस उद्देश्य से बर्थ लिया है, उसे फुलफिल कर सके। और वो उद्देश्य फुलफिल करने के लिए हमें हमारा माइंड एंड बॉडी फुल्ली हेल्दी चाहिए। हमारे माइंड का एंड बॉडी का सेंसेशंस फंक्शन नॉर्मल होना चाहिए, तो ही हम वो हमारा जो बर्थ लेने का मेन मोटो है वो हम फुलफिल कर सकेंगे। यस, so Hahnemann takes about the whole organism of an organism controlled by the vital force or the dynamism, and aim of what is to keep the mind and body axis in perfect control. The control of the various systems responsible for the continuity of life is to be kept in control, in working condition and in equilibrium. Then and only then the reason gifted mind can use this material body or evolve and change this body for being better and better suited for life. And the higher purpose of life is to change for the better and evolve for better and peaceful existence. So mind and body and the genes of the body, ये सब कुछ दिया है उस बात के लिए, उस चीज के लिए जो हमने जिस चीज के लिए बर्थ लिया है, एंड वो इजीली परफॉर्म हो, इसीलिए हमें इतना इंटेलिजेंस माइंड दिया है एंड परफेक्ट हेल्दी बॉडी नेचर ने दी है, गॉड ने दी है, ताकि हम हमारा एग्जिस्टेंस, हमारा पीसफुल एग्जिस्टेंस अच्छी तरह से, हमारा लाइफ सर्वाइवल हो और हमारा एग्जिस्टेंस पावरफुल हो। यस, ताकि हम हायर एंड हायर पर्पज ऑफ लाइफ गेन कर सके। यस, और इसके लिए इतना अच्छा डिफेंस मैकेनिज्म हमें नेचर ने दिया है, किस तरह से उसने उसे डिजाइन किया है, किस तरह से माइंड हमारे जीन्स में हमारे सेल्स को दिया है, हर सेल्स को दिया है, ताकि वो ऑटोमेटिकली जब भी उस पर कुछ अटैक होता है एंड दैट सेल गेट्स इंज्योर, देन it start defense according to that process. So that process, that strategy is the at physical level, that is inflammation, induration and destruction, that is Sora, psychosis and syphilis. And this is again same follow at the mental level, at the mind level. So Sora, psychosis and syphilis, how sorically mind depends, how psychotically mind depends and how sympathetically mind depends. तो किस तरह से वो डिफेंस करता है, तो ये हम आगे देखेंगे कि सोरिक डिफेंस कैसा होता है। तो सोरिक डिफेंस के लिए हमें सोरिक मेंटल्स देखना पड़ेगा, साइकोटिक डिफेंस के लिए हमें साइकोटिक मेंटल्स देखना पड़ेगा एंड सिपिलिटिक डिफेंस के लिए सिपिलिटिक मेंटल्स। तो जैसे सोरिक मेंटल्स होंगे वो सोरिक मेंटल्स, जब सोरिक डिफेंस स्टार्ट होगा तो वो सोरिक मेंटल्स हमें कैरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स हमें दिखाई देंगे। और जब साइकोटिक डिफेंस आता है, साइकोटिक डिफेंस की बात आती है, तो साइकोटिक माइंड किस तरह से फीचर्स, किस तरह से जेनेटिक रिएक्शन, किस तरह से डिस्पोजिशंस इन द फॉर्म ऑफ कैरेक्टर्स उस पर्सन्स में मिलेंगे, उस पेशेंट्स में मिलेंगे। तो इस तरह से हमें सोरिक मेंटल, साइकोटिक मेंटल्स एंड सिपिलिटिक मेंटल्स के स्टडी करना है इन द फॉर्म ऑफ डिफेंस। यस,
सो तो हम अभी लेंगे सोरिक मेंटल्स। तो एट द माइंड लेवल किसी को कोई क्वेश्चन है तो 1-2 मिनट वो क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर हम यहाँ पे वो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। अगर किसी को कोई क्वेश्चन है, कुछ क्वेरी है, या फिर माइंड लेवल पे डिफेंस समझ में नहीं आएगा, तो 2 मिनट के लिए हम रुकते हैं और क्वेश्चंस सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर है क्वेश्चन तो फास्ट आप पूछ सकते हैं, नहीं तो हम आगे बढ़ेंगे। यस। मुझे पता है सबको सब कुछ आता है, फिर भी क्वेश्चन पूछने से बहुत सारे क्वेरीज सॉल्व होते हैं, बहुत सारे आइडियाज मिलते हैं। कुछ भी क्वेश्चन हो, सिंपल से सिंपल भी क्यों ना हो, फिर भी पूछा करो। क्वेश्चन से बहुत कुछ आइडियाज मिलती है, करेज बढ़ता है। क्वेश्चन पूछने से आपको तो फायदा होगा ही, लेकिन जो लोग क्वेश्चन पूछने से डरते हैं, या फिर कैसे पूछना, ये पूछना सही होगा कि नहीं होगा, लोग क्या कहेंगे, है ना। तो अगर आपके माइंड में कुछ क्वेश्चन, तो बेधड़क आप पूछिए, ताकि दूसरों को भी उससे फायदा हो। क्योंकि आप लोगों ने ये सब पढ़े हुआ है, आप लोगों को सब ये मालूम भी है, फिर भी अगर इस हमारे डेली सेशन से, अगर हमारे ये डेली सेशन में ये पढ़ने से आपको अगर कुछ नई आइडियाज मिलते हैं, तो वो भी शेयर किया करो कि सर हमने ये पढ़ा था, लेकिन हमें ये पता ही नहीं चला कि भाई आज आपके पढ़ने से हमें ये आइडिया मिली, हमारा ये क्वेश्चन था, या फिर हमें ये डाउट था, वो क्लियर हो गया, लाइक दिस। तो इस तरह से अगर कुछ भी है तो आप शेयर किया करो। बोलने से नॉलेज बढ़ता है, कम नहीं होता है। यस, क्योंकि विजयकर सर ऑलवेज कहते थे, हर सेमिनार में कहते थे कि बांटो, अपने पास मत रखो, अपने तक सीमित मत रखो, इसे उस हर होम्योपैथ तक जाने क्यों ना, क्योंकि इट इज अ डिवाइन साइंस। यस। यस खाटदेव जी बोलिए। सर आजकल बहुत सारे पेशेंट मेडिटेशंस करते हैं, हम लोग उसको अवॉइड करवाते हैं। थोड़ा तो इसका आवाज आपका, एग्जैक्टली साउंड बढ़ा दीजिए आपका। यस, आजकल बहुत सारे लोग सर मेडिटेशंस करते हैं, तो हम लोग उसको अवॉइड करवाते हैं। तो इसका एग्जैक्टली कैसे परिणाम होता है अपने माइंड पे, और जिसके वजह से सपरेशंस होते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि मेडिटेशन करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, राइट? यस सर। ओके। तो कैसा है, विजयकर सर ने बहुत सेमिनार में मेडिटेशंस के बारे में, योगा के बारे में बताया है कि जिस तरह से हम एंटीबायोटिक्स, स्टेरॉइड्स, अदर एप्लीकेशन, लोकल एप्लीकेशन, आई ड्रॉप्स, ईयर ड्रॉप्स, एनी टाइप ऑफ एनेस्थेटिक ड्रग्स, इन सब बातों को जैसे रिस्ट्रिक्शंस कहते हैं कि भाई नहीं करना चाहिए, नहीं, इससे वाइटल फोर्स गेट्स एक्स्ट्रा स्टिमुलेटेड और गेट्स सप्रेस्ड। तो इससे सप्रेशन होगा, डिजीज क्योर में प्रोसेस होगी, हमारे मेडिसिन को एक्शन की प्रोसेस में डिफिकल्टीज आएंगे, या फिर एक्शन होने के बाद भी स्टॉप हो जाएगी। तो उसी तरह से मेडिटेशन एंड योगा एंड जो बहुत से लोग मंदिर में जाके हवन करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, या फिर किसी गुरु के यहाँ जाके जो वाइटल वहाँ के जो एनर्जीज होते हैं, कॉस्मिक एनर्जीज होते हैं, जो वाइब्रेशंस होते हैं, वो लेते हैं, तो इससे ऑलवेज दे अफेक्ट एडवर्सली ऑन द बॉडी।
क्योंकि वाइटल फोर्स तो एक ही है बॉडी में, वो भी एक एनर्जी है, और ये एनर्जी की वजह से दैट एनर्जी गेट्स सप्रेस और गेट्स एक्स्ट्रा स्टिमुलेटेड, और एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन की वजह से भी डिजीज सप्रेस होगा, या फिर वो एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन की वजह से वो वाइटल फोर्स वीक होके अगेन वहां सप्रेशन होगा। तो मेडिटेशन भी नहीं, ड्यूरिंग मेडिकेशन, ड्यूरिंग होम्योपैथिक मेडिटेशन, मेडिकेशन शुरू है तो आप मेडिटेशन भी अलाउ नहीं कर सकते। यस। सर पर सभी प्रकार की मेडिटेशन क्या, क्योंकि सर हम लोग, मैं 2 3 साल पहले माउंट आबू गया था, वहाँ डॉक्टरों के लिए था प्रोग्राम है, तो यस, वहां पे उनका हॉस्पिटल भी हमेशा ही है। होता है माउंट आबू में, डॉक्टर्स के लिए होम्योपैथी के लिए अलग होता है, आयुर्वेदिक के लिए अलग होता है, जी एलोपैथी जी। के लिए अलग। हर पैथी के डॉक्टर्स के लिए वहाँ सेमिनार्स होते हैं। लेकिन अगर वो पेशेंट में कोई मेडिसिन नहीं ले रहा है, या फिर उसे प्रॉब्लम नहीं है, तो आप उसे करने दीजिए, नो प्रॉब्लम। अगर होम्योपैथिक मेडिसिन ली है, वो लेने के पहले से वो मेडिटेशन करता है, तो आप उसे अलाउ कर सकते हैं। अगर आपको उसमें दिखा कि मेडिसिन देने के बाद उस पेशेंट को इफेक्ट नहीं आ रहे हैं, पहले से वो कंटिन्यू कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, लेकिन अभी हमने मेडिसिन दिया लेकिन मेडिसिन की एक्शन नहीं हो रही है, तो फिर आप उसे रिस्ट्रिक्ट कर दीजिए। लेकिन अगर वो पहले से कर रहा है, अभी मेडिसिन दिया और मेडिसिन के एक्शन भी आ रहे हैं, नो प्रॉब्लम है, तो फिर आप उसे मेडिटेशन कंटिन्यू करने दीजिए। यस सर। यस। अ, वहां के क्योंकि मेडिटेशन से क्योंकि टेलोमियर बढ़ता है। हर पेशेंट की इम्यूनिटी अलग होती है, हर पेशेंट का यस। कॉन्स्टिट्यूशन अलग होता है, हर पेशेंट की सेंसिटिविटी अलग होती है। कोई पेशेंट उस चीज को सेंसिटिव नहीं होगा, कोई पेशेंट सेंसिटिव होगा, तो उसे तुरंत आप स्टॉप करने को लगाइए। और योगा भी सर, यस। योगा 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 तो कर सकते हैं योगा सर। से भी प्रॉब्लम आता है। यस। योगा, इवन एक्सरसाइज से भी प्रॉब्लम आता है। अरे बाप रे। यस। तो मसाज से भी योगा तो कर प्रॉब्लम सकते आता हैं है। सर, योगा तो कर सकते हैं। अगर वो पेशेंट सेंसिटिव नहीं है तो वो चलेगा, अगर वो पेशेंट सेंसिटिव है तो आप उसे स्टॉप करने दीजिए। अच्छा। Yes. लेकिन इसका लेकिन क्यूआर लेकिन प्रोसेस में हर क्या पेशेंट प्रॉब्लम के है? साथ ये स्ट्रेटेजी नहीं चलेगी। आपको वो देखना पड़ेगा, हर पेशेंट को आप एक ही बात एज अ फार्मूला बोल के नहीं कर सकते, एज अ फार्मूला करके आप फिक्स उसे ऐसा ही होगा नहीं बोल सकते, ऐसा ही होगा ये बोलना रॉन्ग होगा। क्योंकि जब तक वो आप एक्सपीरियंस नहीं करेंगे कि मेडिसिन देने के बाद ये जो बातें चालू थी वो चालू है, कंटिन्यू है, मेडिसिन दे दिया, उसके बाद मेडिसिन की एक्शन ही नहीं आ रही, पेशेंट बोल रहा है कि मैं इतने दिन से दवा खा रहा हूँ और मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा, फिर आपको उसके हिस्ट्री में जाके देखना पड़ेगा कि ये क्या कर रहा है, क्यों एक्शन नहीं आ रही, क्या ऑब्स्टेकल्स है। अगर ये स्टॉप करके देखेंगे, तो अगर वहां पे कुछ एक्शन आते तो समझ लेना कि ये ऑब्स्टेकल्स बहुत बड़ा था जो आपने स्टॉप कर दिया। तो मेडिसिन के सिवा पेशेंट को कुछ नहीं करने लगाना है अपने को, एक्सरसाइज नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, योगा नहीं, आई थिंक मेडिटेशन। स्टार्टिंग के डेज में तभी ये आपको करना ही चाहिए। अच्छा। यस। और अगर क्योंकि कैसा है, जब तक मेडिसिन की एक्शन नहीं हो रही, क्योर प्रोसेस स्टार्ट नहीं हो रही, और पता ही नहीं चल रहा कि क्या हो रहा है, क्यों ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, क्यों एक्शन नहीं आ रही, फिर हम खुद को ही ब्लेम कर देते हैं, अरे यार हमारी रॉन्ग सिलेक्शन होगा, हमने सिमिलिमम सिलेक्ट नहीं किया होगा। लेकिन उसके पॉजिटिव फैक्टर्स कुछ अलग ही होते हैं। Yes. हम्म। इसीलिए हर चीज का ध्यान, हर चीज को नोटिस करके रखना चाहिए। अगर आप पेशेंट को फर्स्ट टाइम मेडिसिन दे रहे हैं, तो आप राइट डाउन वहां पे लिख के रखो कि ये पेशेंट ये भी कंटिन्यू कर रहा है, इतने दिन से कंटिन्यू कर रहा है, या फिर उसके साथ एलोपैथिक मेडिसिन शुरू है, या फिर योगा भी करता है, मेडिटेशन भी करता है, जिम भी करता है, देन मसाज भी करता है। ये सब बातें हमारे यहाँ हमारे रिकॉर्ड में मेंशन होने को होना है, क्योंकि जब भी कोई प्रॉब्लम आया तो पट से ध्यान में आएगा कि इस पॉजिटिव फैक्टर की वजह से वो हो रहा है। इसलिए हिस्ट्री उसी को बोलते हैं कि हर चीज मेंशन होने को ना, हर चीज नोट डाउन करने को ना। यस। और आप तभी उसे ये बोल सकते हैं कि नहीं, आपको आज से ये रिस्ट्रिक्शन है, ये नहीं करना है आपको, ये बिल्कुल बंद कर दीजिए। लेकिन आपको पता ही नहीं तो आप कैसे बोलेंगे, है ना। और पेशेंट अगर कोई बोलता भी है कि हम ये कर रहे हैं, तो उसे नोट डाउन करके रखो
आप उसे भले ही 8 दिन के बाद वापस बुलाओ, 8 दिन की परमिशन दे दो कि आप इसको कंटिन्यू करो, अगर कुछ प्रॉब्लम आते हैं तो हम इसे स्टॉप कर देंगे। अच्छा, यस। अगर मेडिसिन की एक्शन रिस्ट्रिक्ट नहीं होती तो कंटिन्यू कर सकते यस, कंटिन्यू कर सकते हैं। अब कितने सारे जैसे कि ओल्ड होम्योपैथी में ये बोलते थे कि कच्चा प्याज नहीं खाना, लहसुन नहीं खाना, है ना। हैं? देन मूला नहीं खाना। कॉफी नहीं पीना, टोबैको नहीं खाना, स्मोकिंग नहीं करना, ये सब रिस्ट्रिक्शंस होते थे। यस सर। लेकिन लेकिन हर पेशेंट इस चीज से सेंसिटिव है क्या? कोई पेशेंट अगर 25 साल से टोबैको चिविंग है तो उसको तो उस चीज की हैबिट हो गई। अभी आपने उसको मेडिसिन, ऐसे कितने सारे रिजल्ट हमने लिए हैं जो टोबैको एक्सट्रीम टोबैको च्यूअर है, उनको बहुत एक्सलेंट रिजल्ट आए। यस सर, कॉफी का भी वैसे, कॉफी तो यस, मेडिसिन कॉफी होती का है। भी वैसे है, हर पेशेंट सेंसिटिव नहीं होता है। हमने जो मेडिसिन सिलेक्ट की है वो मेडिसिन उस कॉफी को सेंसिटिव है क्या, मतलब वो एंटीडोट होती है क्या, कॉफी से, टोबैको से एंटीडोट होती है क्या, स्मोकिंग से एंटीडोट होती है क्या, वो देखना जरूरी है। अगर वो उस चीज के लिए सेंसिटिव है मेडिसिन, मतलब जो भी उसको एडिक्शन है, उस एडिक्शन को अगर वो मेडिसिन सेंसिटिव है, मतलब एंटीडोट हो रही है, तो आप उसे स्टॉप करने को बोलिए। यस। और उसी तरह से हमें मेडिसिन में देखना है कि कोई पेशेंट एग्रीवेटेड बाय फिजिकल एक्सर्शन है, तो हम्म। आप उसे जिम जाना, मेडिटेशन करना, एक्सरसाइज करना, फिजियोथेरेपी करना स्टॉप करने को बोलिए। यस। तो इस तरह से हमें वो चीजें देखना है, लेकिन हर चीज आपके रिकॉर्ड में नोट डाउन होने को ना, तभी वो पाते। मतलब ये जो हमारी क्यूरिंग प्रोसेस है, हम जो पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, हम जो सब बातें देख रहे हैं, हमारे फॉलो, इन सब जो हम बातें नोट डाउन कर रहे हैं, इससे इजी बन जाते हैं और फटाफट ध्यान में आ जाती है कि यस, इसके रिकॉर्ड में ये है, तो इस बातों की वजह से इससे कुछ फर्क हो रहा है क्या, इससे कुछ रिस्ट्रिक्शंस आ रहे हैं क्या, इससे कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो रहे हैं क्या, ये बातें हमें हमारे रिकॉर्ड में रहेंगी तो ही हमें पता चलेगी। Yes. और ये लिखना बहुत जरूरी है ताकि आपके फॉलोअर्स भी उसे देख सके, नहीं तो उनको भी पता नहीं चलेगा कि सर ने ये मेडिसिन दिया था तो कैसे क्योर हुआ, क्या क्योर होता, कुछ पता ही नहीं। राइट। यस। यस। थैंक यू सर। सर लेकिन ये क्यूअर प्रोसेस को कैसे रेस्ट्रिक्ट करती है सर यस। ये? क्यूअर प्रोसेस में ऑब्स्टेकल कैसे आता है सर ये? आपका साउंड नहीं आ रहा है। सर ये क्यूअर प्रोसेस में कैसे ऑब्स्टेकल कैसे पैदा करती है सर, जैसे योगा हो गया, प्राणायाम हो गया? हाँ, ये क्यों ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करते हैं, मेडिसिन की एक्शन क्यों स्टॉप होती है, राइट। यस सर, यस सर। Yes. तो वो अभी मैंने लास्ट इसमें बताया कि अगर कोई मेडिसिन एग्रीवेटेड बाय या फिर एमुलरेटेड बाय एक्सरसाइज है, फिजिकल एक्सर्शन है, या फिर मेंटल इमोशनल एक्सर्शंस है, मेंटल इमोशनल फैक्टर्स है, और वो फैक्टर्स उसके लाइफ में बार बार हो रहे, तो आपकी मेडिसिन उस चीज को सेंसिटिव है, तो वो प्रोसेस क्योर की करेगी कि क्या, वहां पे क्योर होगा क्या? नहीं होगा, क्योंकि बार बार ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं। मेडिसिन एक्शन लेती है, वापस वो मेंटल इमोशनल फैक्टर सामने आ जाते हैं, वापस पेशेंट को सिम्टम्स डिजीज के एग्जैगरेट होते हैं या फिर एग्रीवेट होते हैं, राइट। इसका मतलब क्या है कि मेडिसिन की एक्शन तो हो रही है, लेकिन उस फैक्टर्स की वजह से अगेन मेडिसिन, वो डिजीज प्रोग्रेस हो रहा है और मेडिसिन की एक्शन स्टॉप होते जा रही है। तो ये एक फैक्टर है। दूसरा कि मेडिसिन में भी एक पावर है, एक एनर्जी है, और अगर आप मेडिटेशन से एनर्जी अट्रैक्ट कर रहे हैं, कुछ स्पिरिचुअल या फिर कुछ ऐसी चीजें कर रहे हैं, पूजा पाठ या फिर कोई मंदिर में जाके या फिर गुरु के पास कुछ कॉस्मिक एनर्जी को अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो उसकी वजह से, उससे आपको अगर अच्छा लग रहा है, मतलब आपका वाइटल फोर्स उससे स्टिमुलेट हो रहा है, आपके अंदर की एनर्जी उससे स्टिमुलेट हो रही है, और एक एनर्जी मेडिसिन थ्रू हम बॉडी में डाल रहे हैं, तो वो क्या हो रहा है कि मेडिसिन एक्शन करेगी जब तक वो वाइटल फोर्स एक्स्ट्रा स्टिमुलेट होगा, या फिर उस स्टिमुलेशन की वजह से वाइटल फोर्स बिकम वीक और मेडिसिन
वहां पे अपना काम कर रही, वाइटल फोर्स को एक्स्ट्रा स्टिमुलेशन देने के लिए, मतलब वाइटल फोर्स जो वीक हो गया उसको स्टिमुलेट करने के लिए हम हमारी मेडिसिन दे रहे हैं, थ्रू मेडिसिन की एक एनर्जी दे रहे हैं, और वो एनर्जी वहां पे और वीक होते जा रहे हैं, तो ये एनर्जी उसे कितना स्टिमुलेट करेगी, कितना उसके पावरफुल करेगी, बार बार वीक होंगी तो डिजीज क्योर होगा ही नहीं। एक ये। तीसरा, कि जब वो एनर्जी वाइटल फोर्स को वीक करेंगी तो वाइटल फोर्स डिजीज को क्योर कैसे करेगा, क्योंकि हमारी मेडिसिन तो डिजीज क्योर नहीं करती, हमारी मेडिसिन ओनली वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करती। यस। तो जिस तरह से जैसे कि लोकल एप्लीकेशन सप्रेशन करते हैं, उसी तरह से ये जो एनर्जीज होते हैं इससे भी सप्रेशन होता है, उससे मेडिसिन की एक्शन ही नहीं आने देते, मेडिसिन की एक्शन ही नहीं होगी। यस। ओके, अंडरस्टैंड? यस सर, यस। यस राउत जी। एक्सक्यूज नमस्ते सर। यदि जो पेशेंट वगैरह अभी 5-6 महीने के बाद अच्छे खासा यानी कि मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट है, फिर बाद में वो अपने आप ही वो एक्सरसाइज करने लगते हैं, मेडिटेशन करने लगते हैं, फिर भी वो करने देना चाहिए क्या नहीं देना चाहिए 5-6 महीने के बाद में? वो खुद के मन से करते हैं तो मेडिसिन लेने का 5-6 महीने के बाद में उससे हम्म। अपने मेडिसिन से इम्प्रूवमेंट है? हम्म। बहुत अच्छा सवाल। तो अगर मेडिसिन दिया आपने, 5-6 महीने हो गए, प्योर बहुत अच्छी तरह से प्रोग्रेस हो रहा है, और पेशेंट ने कुछ एक्टिविटी स्टार्ट की जैसे कि योगा, मेडिटेशन, या फिर फिजियोथेरेपी, या फिर एक्सरसाइज, तो आपको पहले, सबसे पहले ये देखना है कि इन बातों की वजह से उसे कुछ प्रॉब्लम आ रहा है क्या, है ना। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आप उसे कंप्लीटली स्टॉप करने को बोलिए, अगर प्रॉब्लम नहीं आ रहा है तो आप कंटिन्यू करने को बोलिए, राइट। लेकिन एक एक स्टेज तक क्योर चले गया, अब उसे अकॉर्डिंग टू हेरिंग्स लॉ रिवर्स होना है, लेकिन रिवर्स नहीं हो रहा है, तो समझ लीजिए कि ऑब्स्टेकल्स आ रहे हैं, आपको वो बातें स्टॉप करनी पड़ेंगी। ओके सर, थैंक यू सर। यस। और कोई? सर, टायफॉइड फीवर मध्ये आपण अॅक्यूट चार्टवरून मेडिसिन देऊ शकतो का? यस, सर्वच अॅक्यूट डिसीजेस मध्ये, नुसतं टायफॉइडच नाही। ओके, थँक्यू सर। यस, अभी 10 मिनट बचे तो अभी हम क्वेश्चन ही ले लेंगे। ओके। सर मेडिसिन स्टार्ट होने के कितने दिनों तक ये अभी जो 1 मिनट मैं आपको ये कर रहा हूँ, अभी जो क्वेश्चन पूछा था कि क्योर प्रोसेस कैसे हैम्पर होती है इन बातों से, है ना, उनको और एक मैं एग्जांपल कहूंगा कि जैसे कि एक मैंने बताया था शायद ये केस, कि रूमेटाइड आर्थराइटिस की केस थी, और वो पेशेंट ओल्ड एज की पेशेंट थी, रूमेटाइड आर्थराइटिस उसका बहुत मेडिसिन से बहुत अच्छा हो गया था, मतलब उसके जो डिस्टॉर्शंस जॉइंट्स में हो गए थे, फिंगर्स में, वो भी धीरे धीरे क्योर हो रहे थे, मतलब जो जॉइंट बेंड हो गए थे वो भी धीरे धीरे अच्छे हो गए थे, इससे पूरा जॉइंट्स में फिंगर्स के पूरे मूवमेंट्स आ गए थे, और वो लेडी अच्छी तरह से अपना वर्क परफॉर्म कर रही थी, जॉइंट पेन्स कंप्लीटली नॉर्मल हो गए थे, जो एकदम बेंड थी वो भी नियर अबाउट उसका स्टेचर जो था वो नॉर्मल होते जा रहा था। इस केस में इतना अच्छा क्योर हो रहा था, और रूमेटाइड आर्थराइटिस ऑटोइम्यून डिजीज में इतना अच्छा रिजल्ट आ रहा है। उस पेशेंट ने, उसके यहाँ कुछ तभी फंक्शन था कि कोई तभी रिलीजियस एक मतलब बहुत बड़ा प्रोग्राम था, उसमें वो लेडी ने कंटिन्यू 2-3 दिन वो उस होम हवन में बैठी, और उसके 15 दिन बाद जो सडन उसको बर्स्ट ऑफ वो सिम्टम्स हो गए, रूमेटिक, पूरी बॉडी जाम हो गई, पूरे जॉइंट्स बेंड होना शुरू हो गए, और इतने पेन एग्जैगरेट हो गए उसके कि वो कुछ भी नहीं कर पा रही थी। फिर वो पेशेंट को सेम मेडिसिन रिपीट की इन हाइपोटेंसी,
नो चेंज, मेडिसिन चेंज की, नो चेंज। उसके बाद ये क्यों हो रहा है, जब वापस हिस्ट्री ली उस पेशेंट की, तब पता चला कि ये 15 दिन 3 वीक्स बिफोर उसने ये किया था। तब पता चला कि उस कॉस्मिक एनर्जी की वजह से उसका वाइटल फोर्स एक्स्ट्रा स्टिमुलेट हो गया और वहां पे सप्रेशन स्टार्ट हो गया, वापस डिजीज रिवर्स होना शुरू हो गया, क्योंकि जो प्रोसेस क्योरिंग की वहां पे हो रही थी वो स्टॉप होके वहां से रिवर्स हो गया। तो ये बिकॉज ऑफ दैट हुआ। और जब उसे फिर उसके बाद सेपिया 200 का एक डोज दिया तो वापस वो क्योर प्रोसेस स्टार्ट हो गई थी। तो ये बहुत ही एक्सलेंट एक्सपीरियंस मैंने एक केस में लिया है बिकॉज ऑफ दिस, कि क्योर प्रोसेस किस तरह से स्टॉप होती है और डिजीज रिवर्स होना शुरू हो जाता है। यस, किसने पूछा था ये क्वेश्चन? सर हाँ, सर मैंने पूछा था, डॉक्टर शिरीष रामटेके। शिरीष रामटेके अच्छा, शिरीष रामटेके। कहाँ से आप? सर, चंद्रपुर। ओके, तो समझ में आया? यस सर, यस। यस। लेकिन सर कुछ ना कुछ तो चलते रहता है ना सर हर घर में, यानी तो पूजा पाठ तो। राइट, एकदम मतलब बहुत ही एक्सलेंट आपने पूछा। हर घर में कुछ ना कुछ शुरू होता है, लेकिन हर घर में कुछ ना कुछ होने के बाद हर पेशेंट इससे अफेक्ट नहीं होता है ना। सेंसिटिविटी डिपेंड करती है। डिपेंड अपॉन द Idiosyncratic. सेंसिटिविटी। इसीलिए हम हर पेशेंट को एक जैसा नहीं देख सकते, एक जैसा नहीं बोल सकते, एक जैसा नहीं ट्रीट कर सकते। हर पेशेंट को उसके जैसा ही ट्रीट करना पड़ेगा जैसा उसका कॉन्स्टिट्यूशन है। यस यस सर, यस। तो सेपिया देने के बाद फिर से वो यस, सेपिया देने के बाद वापस फिर से क्योर प्रोसेस स्टार्ट हो गई। तो सर सेपिया मेन डोज रिपीट किया 200 ना? का सिंगल डोज दिया। कंस्टिट्यूशन रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़े, सेपिया दिया। हाँ हाँ, सेपिया 200 का एक डोज दिया। यस, ओके, कंस्टिट्यूशन सेपिया रिपीट करने की जरूरत ऐसे नहीं पड़े। केसेस में सेपिया जहां क्योर प्रोसेस हैम्पर हो गई, ब्लॉक आ गया क्योर प्रोसेस में, अचानक पेशेंट क्योर हो रहा था और अचानक क्यूरिंग प्रोसेस स्टॉप हो गई, पेशेंट डल होते जा रहा है, डलनेस आते जा रहा है, पेशेंट का लैक ऑफ इंटरेस्ट होगा हर चीज में, पेशेंट ना बात कर रहा है ना कुछ कर रहा है, एक्सट्रीम डलनेस वीकनेस अगर आता है तो समझ लो कि वहां पे सेपिया का एक डोज देना पड़ता है। ओके ऐसी एक केस थी, Causation. टाइफाइड फीवर की केस थी, जिसे जुवेनाइल डायबिटीज था, एक लड़की थी, उसके फादर भी एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे। तो जुवेनाइल डायबिटीज के लिए उस पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू थी अपनी, और उसे टाइफाइड हो गया। टाइफाइड में हमने वही सेम रेमेडी उसकी रिपीट की, क्योंकि उसकी ब्लड शुगर काफी नॉर्मल तक आ गई थी, मतलब नियर अबाउट नॉर्मल ही थी, उसका इंसुलिन भी काफी कम हो गया था। तो उसे टाइफाइड हुआ, टाइफाइड में वो सेम कॉन्स्टिट्यूशनल दिया उसको, उससे कोई इफेक्ट नहीं, फीवर कंटिन्यूअस था। 8 डेज हो गए, 15 डेज हो गए, फीवर जा ही नहीं रहा। फिर एक्यूट रेमेडीज दिए, एक्यूट रेमेडीज से भी फीवर नहीं गया, और धीरे धीरे वो पेशेंट डल होते गया। इतना डल हुआ, इतना वीक हो गई वो लड़की, और फिर इंसुलिन लेवल मतलब शुगर लेवल बढ़ना शुरू हो गई, इंसुलिन भी बढ़ाना पड़ा इंजेक्टेबल। वो इतनी डल हो गई थी, इतना डलनेस था उसमें, चिली थी, थर्स्टलेस थी, लैक ऑफ इंटरेस्ट किस कोई चीज में, मतलब इतनी इंडिफरेंट हो गई थी हर चीज के लिए। फिर उसे सेपिया 200 का एक डोज दिया तो उसका फीवर भी गया, उसका डलनेस इंप्रूव हुआ, जो इंडिफरेंस उसमें आया था वो चले गया। देन धीरे धीरे उसकी इंसुलिन लेवल भी बॉडी में बढ़ना शुरू हो गई। तो ये सेपिया का वर्क है, बहुत ही एक्सलेंटली वर्क करता है ऐसे केसेस में। जो केस लटक गई, डलनेस आया, समझ लो सेपिया का काम वहां पे आ गया। यस। डोज मेन डोज रिपीट करना पड़ता है क्या सर बाद में? जीसीएस. उसे तो बहुत दिन तक मतलब सेपिया एक डोज देने के बाद बहुत दिन तक उसे मेडिसिन देने के काम ही नहीं पड़ा। फिर
कुछ शायद हो गया था, उसके बाद उसे वापस कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी दे दिए। यस यस, समवन एल्स, और कोई क्वेश्चन? सर बैड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी के लिए क्या दे सकते हैं सर? बैड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी। बैड केस ऑफ कीमोथेरेपी, यस। तो वहां पे आप पूरी हिस्ट्री लीजिए, जीसीएस निकाले, अगर वहां पे सेपिया आ रहा है तो सेपिया दे दीजिए, या फिर आपको कॉन्स्टिट्यूशनल ही देना पड़ेगा, क्योंकि कीमोथेरेपी में बहुत सारे रेमेडीज आएंगे, ऐसा नहीं कि सेपिया ही आएंगे कर। अच्छा, नक्सोमिका भी आ सकता है क्या सर? नक्सोमिका, सल्फर, मर्कसॉल, तो सर कैंसर में जीसीएस देना है कि अपने को स्टेट सिमिलिमम देना है? स्टेट सिमिलियम नहीं, आपको वहां पे फिनोटाइपिक देना है। और थोड़ा एक्सप्लेन करके बताएं सर प्लीज। फिनोटाइपिक मतलब जीन्स म्यूटेड होने के बाद जो सिम्टम्स आए, उन सिम्टम्स को लेके, उस कैरेक्टरिस्टिक्स को लेके आपको प्रिस्क्राइब करना है। वहां पे और ऐसे केसेस में जीसीएस कब देते हैं फिर? स्टेट सिमिलियम आपको फास्ट प्रोग्रेसिंग सिपिलिटिक, एक्यूट सिपिलिटिक केसेस में देना है। ओके सर, ओके, थैंक यू सर। सर स्टेट सिमिलिमम आणि फिनोटाइपिक मध्ये काय डिफरन्स आहे मग? आताच तर सांगितलं। नाही म्हणजे डिसीज नंतर आपण कॅन्सर नंतर जे सिम्पटम्स बघतो ते फिनोटाइपिक झाले आणि स्टेट मध्ये फास्ट जीन्स म्युटेशन नंतर जे चेंजेस आले माइंड मध्ये, बॉडी मध्ये, ते कॅरेक्टरिस्टिक सिम्पटम्स घेऊन तुम्हाला प्रिस्क्राइब करायचंय, दॅट इज द फिनोटाइपिक। येस सर. आणि स्टेट सिमिलिमम मध्ये असं नाही, तुम्ही तिच्यात एखादं त्याचं जे कॉन्स्टिट्यूशनल सिम्पटम आहे, कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्पोजिशन आहे, ती पण टाकू शकता। ओके. सीएच्या प्रत्येक केसमध्ये फिनोटाइपिकच दिलं जातं असं आहे का? जीसीएस सर? हा, कॅन्सर कार्सिनोजेनिक याच्यामध्ये प्रत्येक याच्यात फिनोटाइपिकच दिलं जाते असं? फिनोटाइपिक, Okay. परंतु कॅन्सरच्या मोस्ट ऑफ द केसेस ज्या आफ्टर सर्जरी तुमच्याकडे येतात, सर्जरी झालेली आहे आणि सर्जरी केल्यानंतर तो पार्ट रिमूव्ह केल्यानंतर तिथे जर मेटास्टेसिस होत असेल, तर अशा केसेस मध्ये तुम्ही जिनोटाइपिक पण देऊ शकता। ओके. यस यस, और कोई, या फिर शुड आई स्टॉप हियर? सर मेडिसिन स्टार्ट केल्यानंतर किती दिवस पर्यंत त्यांना मेडिटेशन, योगा हे रेस्ट्रिक्ट करायला पाहिजे? जोपर्यंत तुमची ट्रीटमेंट सुरू आहे। जर त्या पेशंटला त्यांनी ऍडवर्ट इफेक्ट होत असेल तर त्याला कम्प्लीट क्युअर होईपर्यंत ते स्टॉप करायला लावा। अगर त्या गोष्टींनी काही ऍडवर्ट इफेक्ट होत नसेल तर तुम्ही कंटिन्यू करा। सर आपल्याला माहितीच नाही झालंय की मेडिसिनची ऍक्शन सुरू झाली की नाही, पण कधी कधी मग लोक त्यांना ऍडवाइस करतात की हे करा ते करा, तर मग ते कधी कधी योगा किंवा हे वगैरे सुरू करतात। म्हणून मग मी त्यांना- सांगितलं की स्टार्टिंगला तुम्ही त्यांना सांगा की 15 दिवस तुम्ही काही नका करू, आपण डोस घेताय, 15 दिवस तुम्ही स्टॉप करा, 15 दिवसानंतर तुम्ही स्टार्ट करा। 15 दिवसात ऍटलीस्ट आपल्याला एवढं तरी कळेल की प्रायमरी ऍक्शन मेडिसिनची आली की नाही आली। राईट? येस सर, येस सर. येस डॉक्टर वर्षा। थँक्यू सर. हॅलो सर, आवाज येतोय माझा तुम्हाला? आज मला आवाज थोडा कमी का येतोय? हा, आवाज येतोय का? हा, आवाज येतोय, परंतु सर्वांचाच कमी आवाज येत आहे मला। तुम्हाला माझा आवाज कसा येत आहे? बरोबर येतोय सर तुमचा आवाज. चांगला येतोय सगळं. तुमचा का बरं मला कमी येत आहे? बरं.
तरी आता पण आता येतोय सर आवाज? हा हा सर मला एक विचारायचं होतं की एकेटी घेतल्यानंतर म्हणजे टीबी झाला, एकेटी पूर्ण झाली आणि त्याच्यानंतर पण जर काही साईड इफेक्ट्स असतात तर त्यासाठी आपण होमिओपॅथीची ट्रीटमेंट देऊ शकतो का? येस. म्हणजे जसं पोटामध्ये काही जात नाहीये, भूक नाहीये, विकनेस आहे, मग त्याच्यामध्ये आपण मायाझम काय कन्सिडर करायचा? एकीटी जे कॉक्स ट्रीटमेंट घेतली ती कुठल्या कॉक्स घेतला घेतली? पल्मनरी. पल्मोनरी. तर तुमचा क्वेश्चन काय होता? म्हणजे आपण इथे मायाझम कसं कन्सिडर करायचं? काय करायचं? ट्युबरक्युलोसिस इट इज प्रायमॅझमॅटिक डिझीज, राईट? जेव्हा ट्युबरक्युलोसिस होतो तेव्हा इन्फ्लामेशन होते लंग्स मध्ये, नंतर तिथे इंड्युरेशन होते, नंतर कॅव्हिटेशन फॉर्मेशन होते म्हणजे अल्सर. सो इट इज अ ट्रायमॅझमॅटिक डिझीज. म्हणून जेव्हा डिझीज झाल्यानंतर जे काही सिम्पटम्स येतील इट इज प्युअरली सिफिलिटिक. लॉस ऑफ complete loss of appetite, it is syphilitic, right? Cachexia, weakness, loss of weight, loss of muscles, it is again syphilitic. म्हणजे अशा केसमध्ये तुम्हाला सिफिलिटिक ग्रुप प्रिस्क्राइब करायचं. ओके. आणि अप्रोच आपला काय ठेवायचा असतो? म्हणजे पुढे कसं आपल्या ट्रीटमेंट नंतर फरक पडेल? कॉन्स्टिट्युशनल ट्रीटमेंट, सिंगल डोस आणि कॉन्स्टिट्युशनल ना? GCS. ओके. सर एक मिनिट आणि जर काही इन्व्हेस्टिगेशन काही करायचे असतात का आपल्या साईडने? पार्डन? इन्व्हेस्टिगेशन्स मध्ये काही रोल असतो का इन्व्हेस्टिगेशनचा? येस, इन्व्हेस्टिगेशन तुम्हाला कंटिन्यू करावंच लागतील. तिथं चेस्ट एक्सरे, ओके. तुम्ही फॉलोअप्स मध्ये चेस्ट एक्सरे करून बघायलाच पाहिजे की कॅव्हिटेशन आहे का, अजून कुठे त्याचं मेटास्टॅसिस होत आहे का. थँक्यू सर. थँक्स अ लॉट. येस. सर एक केस आहे, राईट लिम्फेडेनायटिस आहे, सबमंडिबुलर लिम्फेडेनायटिस आहे. त्याचं FNAC झालं पण अटिपिकल सेल्स दाखवत आहे, असं कन्फर्मेटिव्ह कार्सिनोजेनिक दाखवत नाही. पण ते म्हणतात बायोप्सी करावं लागेल. बायोप्सी म्हणलं ते रिमूव्ह करावं लागेल. तर रिमूव्ह करायच्या आधी आपण सस्पेक्टेड कार्सिनोजेनिक म्हणून ट्रीटमेंट करू शकतो की फर्दर पूर्ण हे करावं लागेल? म्हणजे ऍक्च्युअली रिमूव्ह केल्यावर ते मेटास्टेसिसचे आणखी जास्त चान्सेस राहतात ना सर. त्यामुळे आपलं ट्रीटमेंट कसं करायचं त्याच्याबद्दल थोडस. GCS काढा. GCS डायरेक्ट. येस, पॅथॉलॉजिकल सिम्पटम्स घेऊन तुम्ही GCS देऊ शकता. बट कार्सिनोजेनिक असण्याची शक्यता 90% सांगितली ENT सर्जननी, पण ते आपण इन्व्हेस्टिगेट फर्दर केलेलं नाहीये. तर तुम्ही जसं म्हटलं की जर आफ्टर सर्जरी आले आणि मग नंतर आपल्याला GCS काढावं लागेल आणि बिफोर सर्जरी जर कार्सिनोजेनिक आहे तर आपण फिनोटाईप द्यावं लागेल. त्यामध्ये कसं म्हणजे आपण एस्टिमेट कसं करायचं या गोष्टीला? पॅथॉलॉजिकल सिम्पटम्स घेऊन, डिझीज पर्टिक्युलर सिम्पटम्स घेऊन तुम्ही प्रिस्क्राईब करा. त्यामध्ये जर काही तुम्हाला पर्टिक्युलर माइंडचं काही मिळत असेल डिस्पोजिशन किंवा रिॲक्शन, ते घेऊन तुम्ही प्रिस्क्राईब करा. ओके सर. येस. एक आता जे विचारलं मला एकानी की आफ्टर ऑपरेशन, मी जसं सांगितलं की तुम्ही ऑपरेशन झाल्यानंतर GCS द्या, तो पेशंट क्युअर होईल. तर एक एक्झाम्पल तुम्हाला सांगतो की माझी एक केस होती. त्या टीचर होत्या, त्यांना इलिओसिकल जंक्शनला कॅन्सर झाला आणि त्यामध्ये त्यांचं लार्ज इंटेस्टाईन पूर्ण काढलं आणि स्मॉल इंटेस्टाईनचा काही पार्ट काढला. मोठी सर्जरी झाली त्या पेशंटची. सर्जरी केल्यानंतर ती जी वुंड होती, म्हणजे त्यांना एक ब्लॅडर मधनं ट्यूब, नंतर इंटेस्टाईनचं फिकल हे काढण्याकरिता त्याच्यात वेगळी ट्यूब, राईस ट्यूब. तर अशा पेशंटला ती वुंड हील होत नव्हती, कंटिन्युअस त्यामधनं पस डिस्चार्ज. तर त्यांनी डिस्चार्ज देऊन पेशंटला घरी पाठवून दिलं की हळूहळू क्युअर होईल, नाहीतर हे असंच राहील. पेशंटची सर्जरी होऊन 3 महिने झालेले होते
आफ्टर 3 months ज्या पेशंटचं वेट काहीतरी 72 kg होतं, तिचं त्या पेशंटचं वेट झालं ओनली 28 kg. तर अशा कंडिशन मध्ये मग त्यांनी पूर्ण होप सोडून दिल्या. अशा पेशंट होप सोडल्यानंतर एकदा असंच कोणा तरी रेफरन्सने त्यांना कळलं, तर एकदा मला बोलवलं, मी पाहायला गेलो, त्या पेशंटला बघितलं, तर नुसतं बोन्स राहिले होते. पेशंट कम्प्लिटली बेड रिटर्न होता, बेड सोर्स झालेले होते आणि एवढा तो स्मेल, म्हणजे भयंकर कंडिशन त्या पेशंटची. तर आफ्टर ऑपरेशन हे झालं होतं, आफ्टर सर्जरी हे झालेलं होतं, म्हणून त्या पेशंटची पूर्ण हिस्ट्री घेऊन मी त्या पेशंटला GCS दिलं आणि त्या पेशंटचं GCS निघालं होतं आर्सेनिक अल्बम. आर्सेनिक अल्बम 200चा एक डोस दिला. एका महिन्यात त्या पेशंटचं वजन 28 वरनं 37 वर गेलं. हळूहळू इम्प्रुव्हमेंट झाली आणि विदिन 6 months तो पेशंट क्युअर झाला. त्या पेशंटला मेटास्टॅसिस झालेलं होतं लंग्सला, युटेरसला, ते पण क्युअर झालं. सिंगल डोज आर्सेनिक अल्बम. नो रिपिटेशन. येस, सिंगल Very डोज, good. सिंगल मेडिसिन. ग्रेट सर. पेशंट अजूनही जिवंत आहे. त्या सर्जरी नंतर त्या पेशंटनी 15 वर्ष सर्व्हिस केली राहिलेली. होप फॉर होपलेस Yes. असं झालं. तर अशा पेशंट मध्ये GCS द्यायला पाहिजे आफ्टर सर्जरी. ओके सर. येस. सो थँक्यू व्हेरी मच. थँक्यू सर. थँक्यू. I have completed my sir. time. Okay. थँक्यू सर. Thank you. sir. सर Thank you, sir. Thank you. Bye bye. See you. सर tomorrow. एक Yes. सर एक क्वेश्चन आहे सर. एक पेशंट आहे, त्याला स्किन इरप्शन तुमचं झाले नाव सांगा. असे. सर डॉक्टर कांबळे, नैना कांबळे. कल्याण. हा, कल्याण. हम्म. तर त्याचं T3 T4 नॉर्मल आहे, पण TSH 4.9 आलं आहे. हम्म. मुलगा आहे तो, लठ्ठस आहे. तर मग हे जे इन्व्हेस्टिगेशन आले आहेत, तर याच्यावरून काय सांगायला हवं? म्हणजे हायपोथायरॉइडिझम वगैरे तर नाहीच आहे ना ते? T3 T4 नॉर्मल आहे सर, हम्म. आणि TSH 4.5 असायला हवं, 0.5 4.5, तर 4.9 आलेला आहे. तर इन्व्हेस्टिगेशन वरून काय सांगता येईल? म्हणजे काय? बॉर्डर लाईनच आहे, बॉर्डर लाईनच आहे. काही बघा हिस्ट्री घेऊन, काही आहे असतील मेंटल फॅक्टर्स तिथे, तर ते काउन्सिलिंगनी काढा किंवा एखादा डोस द्या, त्याला निघून जाईल, नॉर्मल होऊन जाईल. अच्छा. आणि कंप्लेंट स्किनवर आलेले आहेत. हायपोथायरॉइडिझमची सुरुवात होत आहे. अच्छा, ओके ओके ओके, चालेल. पण हायपोथायरॉइडिझम असूनही तो म्हणजे कसं म्हणतो, सतत खात राहतो, हे एक वेगळं साइन्स अँड सिम्पटम्स तर दिसत आहेत ना आपल्याला हायपोथायरॉइडिझमचे. दिस इज स्टार्टिंग. क्युअर सर करायला हायपोथायरॉइडिझम हा, पण T3 T4 पण हे व्हायला पाहिजेत ते ना? नॉर्मल असू शकते. अच्छा, असं आहे का? म्हणून मी कन्फ्युज Yes. झाले. So, आणि ओके ओके. आणि एक सिम्पटम आहे मग त्याच्यात, की हायपो मध्ये भूक कमी होते ना, नो, तर तो खात राहतो, वाढू खात राहतो. शकते, भूक कमी होऊ शकते, डलनेस वाढू शकतो, डलनेस कमी होऊ शकतो, वेट वाढू शकते किंवा वेट कमी सुद्धा होऊ शकते, लिथार्जी येऊ पण शकते किंवा लिथार्जी जाऊन हायपर ऍक्टिव्हिटी सुद्धा येऊ शकते. हा, दोन्ही होऊ शकतात त्याच्यात. येस येस. ओके 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 सर. शुगर मला वाटलं कमी झाली तरी सेम सिम्पटम येतात, शुगर वाढली तरी हो. सेम सिम्पटम्स असतात. हो 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 हो, है बरोबर. ना? येस ओके ओके, येस. ठीक आहे. ओके, थँक्यू व्हेरी मच. चालेल. थँक्यू. Okay, bye bye. Thank you, sir. See you tomorrow. Bye. Thank you all of Thank you, you, sir. Thank you, sir. and love you. सर थँक्यू सर. उद्या या ना सर. Bye bye.